Am I audible? Yeah. Let us respect time and let us start. Welcome everyone in this live masterclass on how to sing Hindustani classical music. Before we move further, I have few questions in front of you. The first question is, how many of you? Okay, there are people still joining. Okay, let them join. Let them join. Hello Sarika ji, hello Manoj ji, hello Karthik, hello Abhijit, hello Rekha ji. Good to see you again. Hello Aminder ji. We will clarify this question today. The doubts that you asked. Hello Suresh ji, where have you been? Very Hello. nice. Good to see you. I had been to Mumbai near your place, but I could visit you. Yeah. You should have come. I was there. I was a very short time I was there, you know. So I was going to Chembur to Thane. I remembered when I crossed Mulund, you were near there. I'll come next time. Okay, sure. You're most welcome. So I live in Mulund, in Mumbai. So if you ever wish, and if I'm there in Mulund, we can definitely meet. That's there. Okay. Now there are few people, they have joined. They are still joining. Okay. So the first question that I have in my mind is that you can type in the chat box, since how many days have you enrolled in my course? The first question, since how many days have you enrolled in my course? You can type the date, or you can type since last 14 days or 15 days. You can like 1 week. Okay. 3 days. Okay. Manojji, 3 days. In my course, 299 rupees course. That is what I'm asking. 14 days. Okay. Come on, I want everybody to answer. 2 days since I started watching your course. Okay, Satish ji, getting you. What about others? Since how many days have you started watching? Have you enrolled in my course? First of all, they enroll 3 days, 1 month. Okay. Okay. Now, 2 days. Okay. Second question that comes in my mind is that how many of you have watched one episode every day, or more than that, or less than that, but doesn't matter, but you have completed my course? Just type I in the chat box. One day, one video. I. Okay. Watched and completed, but don't get perfection. Okay. Yes. I understand. This is Hindustani classical music. It's vast, it's huge, and it takes. ये ऐसे ही किसी को नहीं आएगा. आपको वो you have to earn it, right? It's music. Completed. Okay. Watched. Okay. I have third videos which you have taught how to catch Mukta. Fourth video is also there. Same. I mean that. First 1, 2, 3, and 4 videos are there. The basic question that people ask me after they join my course, sir, सिर्फ 4 ही videos है. तो I said yes, 4 videos है. What's your problem? नहीं सर 4 ही वीडियो. मुझे लगा बहुत बड़ा कोर्स होगा. तो I say them that these are 4 videos के ये 4 5 मिनट का वीडियो नहीं है. It's a complete 1 hour video, 1.5 hours video, 40-45 minutes video, right? So my course content is more than the industry standards. Industry standard is 2 hours. जो online course का जो standards है, I don't believe in that all that bullshit कि 5 मिनट के वीडियो बनाओ. 5 मिनट में अगर लोग बंद कर देंगे, और अगर मैं 70-80 वीडियो बना देता आपके लिए, तो आप बोलोगे बाप रे ये बहुत बड़ा कोर्स है और मैं इसको कंप्लीट ही नहीं करूंगा. 4 वीडियो इज लाइक, हाँ 4 है ना, 4 में कर लूंगा. तो मेरे बचपन में मेरी मम्मी मुझे लड्डू बना के देती थी. तो छोटे छोटे लड्डू देती थी. मैं बोलता था बाप रे 10 लड्डू मैं नहीं खा सकूंगा. लेकिन बड़े बड़े 3 ही देती थी, उतने का ही, तो वो मैं खा लेता था. आप में से मोदक किसी ने खाया है?
अगर आप 3 मोदक खाते हो छोटे छोटे, तो वो एक चपाती बन जाता है विथ लॉट ऑफ सब्जी, उतना कंटेंट है उसमें, उस एक 3 मोदक में। लेकिन एक चपाती और इतना सारा सब्जी हम खाने के लिए बोलेंगे कि बाप रे ये तो पूरा का पूरा खाना हो गया, लेकिन 2-3 मोदक तो हम आराम से खाते हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जो लोग भी मुझे बोले कि 4 ही वीडियोस है, 4 कंप्लीट तो करके दिखाओ। देखो, लेट मी टेक अ पोल and honestly please answer me in yes or no, okay, so that we can find out the percentage of how many of you have completed the course out of the people, 27 people who are watching this. Let us launch the poll. Click on yes if you have completed the course, click on no if you have not completed the course. Yes or no? Yes or no? Yes if you have completed the course, no if you have not completed the course. And that's completely okay if you have not completed the course. Some of you may have joined yesterday or 2 days ago, 3 days ago. That's okay. Just write down that you have not completed the course. Okay. Let me end the poll. Let me share the results with you. 35% of the people have completed the course. 65% of the people have not completed the course. सिर्फ 4 ही वीडियो है फिर भी. So it's my humble request for you that please complete the course. This course is very important. बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुत एडिटिंग किया है, उसमें बहुत विजुअल्स डाले हुए हैं, बहुत सारे बंदिश है, बहुत बार मैंने खुद ने प्रैक्टिस की हुई है और बहुत बार प्रैक्टिस कर करके इसलिए वो एक टेक में आ पाया है। बहुत सारी लगन है, बहुत सारी मेहनत है जो मैंने की है। और सर in अच्छा, the fifth episode, no, fourth or fifth episode, you have told us about how to make tan. It's really wonderful, sir. Really a God promise. I've become fan of you. Really, how nicely you told, na? Very nice, very nice. I just yesterday I was watching up to 12:30. That. बाप रे. That episode. Very nice, very nice. Thank you, sir. Thank you. God bless you. ठीक है, ठीक है. Thank you so much for watching. ठीक है. Now, today what we are going to do is, you watch the course. जो 35% of the people they have watched the course, congratulations. जो बाकी के 65% people है, please complete the course. Please make sure that you trust the process, because बहुत सारे लोग अलग अलग क्लास में जाते हैं और अलग अलग कुछ तो सीख के आते हैं और वो बोलते हैं कि यार आप अलंकार नहीं सिखा रहे हो, यार आप ये नहीं सिखा रहे हो, आप वो नहीं सिखा रहे हो. So my course is practical course, not that kind of a thing. जो लोग अलंकार सीखते हैं, जो लोग ये सीखते हैं, वो परफॉर्म क्यों नहीं करते अलंकार? अगर परफॉर्म अलंकार नहीं करते हैं तो फिर अलंकार सीखने की जरूरत नहीं है. That I have well explained in that course. आरो सीखने की जरूरत नहीं है, अलंकार सीखने की जरूरत नहीं है. थियोरेटिकल चीजें जो कि आपने माइंड को कंफ्यूज कर देंगे, वो सब सीखने की कोई जरूरत नहीं. Instead, I have given you the wonderful clarity, complete clarity, that you can learn a beautiful ragas and you can make those ragas, you can beautify those ragas with the help of the tune of that rag, the chalan of that rag. And that is the most important. चलन को चलन की तरह देखो, चलन की तरह सुनो, चलन की तरह गाओ, है ना? हम इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, उसका हाथ या इसका पैर नहीं देखते हैं ना. इंसान को इंसान की तरह देखते हैं, तो राग को राग की तरह देखो. that is my take on that. तो अलंकार ये वगैरह कोई सीखने की जरूरत नहीं है. एंड इसलिए we are learning राग with the help of its tune. ट्यून समझ में आ गई, सब कुछ everything will fall into place. Even if you have learned rag in the form of aro and alankar, some or the other day you have to follow what I'm going to tell you. Maybe you may realize after 10 years or 20 years or after 10 days. I don't have any problem. क्योंकि सेम आरो और सेम औरो के कितने सारे राग हैं. Let us take for example भूप राग और यमन राग.
सॉरी भूप राग एंड देशकार राग, उसके सेम आरोह एंड अवरोह है, सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, राइट? किसी को पता है तो सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, ये भूप राग का आरोह अवरोह है, और यही आरोह अवरोह यमन राग, सॉरी यमन क्यों आ रहा है दिमाग में, देशकार राग का देश आरोह देश अवरोह है। देश नहीं, देश इज डिफरेंट, देशकार, देशकार राग का आरोह अवरोह भी सेम है। तो दोनों के आरोह अवरोह सेम है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि मैं देशकार गा रहा हूं कि भूप राग गा रहा हूं? बिकॉज ऑफ इट्स ट्यून, उसके स्टॉप्स अलग है, उसके उसकी जो तर्ज है वो अलग है। वेयर टू चलन, फाइंड लिस्ट ऑफ रागस, तो चलन चलन वेगळे आहेत. हाँ उसका चलन अलग है, राइट? एब्सोल्युटली. सो यू हैव टू understand the rag in the form of tune. And where do you find the list of ragas? You can find the list of ragas on Google, right? There are n number of ragas, but I'm soon creating a video on how many ragas do you have to learn, sing one rag or multiple rag. So you will understand that in my video. I'll be sending you by tomorrow. So you have to learn rag by its tune, and today we are going to learn a fresh new rag. Okay, and I'll try my level best that you sing it properly. Okay, you sing it properly. Let me start the tanpura, and let us sing. कौन सा राग करेंगे? Have any rag in your mind? Can you please type? भैरवी. ओके, भैरवी क्या मुश्किल राग नहीं है, बट सबसे एंड में गाया हुआ है. एनी विल डू, काफी. ओके, वृंदावनी सारंग, ऑल लाइट रागस आर कमिंग. आसावरी, ओके, यमन, ओके, सारे लाइट रागस. Any which can be sung in the morning. Yes, that makes sense. Even though that does not make sense, but still that makes sense. Because if you're singing any rag at any point of time, अच्छा ही लगता है, right? अगर आप यमन राग अभी गा रहे हो या भूप राग अभी गा रहे हो, जो कि शाम के राग है, अगर वो आपको पता नहीं है तो आपको वो अच्छा ही लगता है. तो बट इट्स अ ट्रेडिशन कि ये सुबह वाले राग है, ये शाम वाले राग है, ये यहाँ के राग है या वहां के राग है. सो दैट इज व्हाई वी सिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट देयर आर सो मेनी रागास दैट आर at midnight, or there are so many ragas that are at late night or early morning. We don't get up at that point of time, or we do not have concerts at that time. रात को 2 बजे 3 बजे कोई कॉन्सर्ट नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है. लेकिन फिर भी हम वो राग शाम को गाते हैं, और फिर हम वो उसको अच्छे से अच्छा भी लगता है. जैसे सारिका जी ने बोला भैरवी, भैरवी राग सबको पसंद है, एवरीबडी लाइक्स भैरवी राग. सो भैरवी राग चाहे आप सुबह का मतलब सुबह का कॉन्सर्ट एंड करो, चाहे आप शाम का कॉन्सर्ट एंड करो, एंड में भैरवी गाया जाता है, राइट? तो भैरवी समझो 10 बजे का कॉन्सर्ट था, वो 2 बजे खत्म हो गया, तो 2 बजे भी भैरवी अच्छा लगता है. एंड अगर समझो 6 बजे का कॉन्सर्ट था, 9 बजे खत्म हो गया, तो एंड एट लास्ट अगर आप भैरवी गा रहे हो तो 9 बजे भी अच्छा लगता है. तो भैरवी समथिंग की सबको अच्छा लगता है, राइट? तो ये आपके दिमाग में भर दिया गया है. जैसे हम बॉस को करते हैं ना कि सर ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, सर ये किया तो अपने कंपनी को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. तो वैसे जो पहले के जो गायक थे
जो उस्ताद थे, वैसा कहा जाता है कि वो राजा को जाके बोलते थे कि ये मैं आपके लिए स्पेशल राग गाने वाला हूँ आज, और ये शाम को बहुत अच्छा लगता है, अभी के माहौल के लिए ये सबसे अच्छा राग माना गया है, ये राग गाने से आपका तबीयत एकदम अच्छा रहेगा एंड ऑल। तो ये सब राजा को खुश करने के लिए ये सब बनाया। एंड देन वी एज ह्यूमंस वी ट्राई टू क्रिएट लॉजिक एंड ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग। तो इसलिए फिर कोमल रे, कोमल ध वाले जो राग है, कोमल रे, कोमल ग, ये सारे जो जिसमें जिन रागों में होते हैं, ये सारे राग सुबह में क्लासिफाई कर दिया, और बाकी सारे राग जो शुद्ध ग शुद्ध म वाले जो राग है वो शाम को क्लासिफाई कर दिया, राइट। तो ऐसे करके ये बनाया, बट स्टिल लेट अस रिस्पेक्ट आवर ट्रेडिशन एंड लेट अस सिंग। क्या बात है, बहुत अच्छे, मुझे ये आ रहा है, बिलास खानी तोड़ी, नट भैरव, वेरी नाइस शब्बीर जी, वेरी नाइस। These are my favorite ragas, but at the same time these are a little bit difficult. ठीक है। सा मैं आपको नट भैरव सिर्फ गा के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने वो बोला इसलिए। लेकिन ये आज मैं आपको क्यों नहीं सिखा सकता, उसका कारण मैं आपको गाने के बाद दूंगा कि उसमें क्या डिफिकल्टी। नि सा रे ग, थोड़ा सा तानपुरा बड़ा देता हूँ। ग ग सा हरे ग म प ग म रे ग म ध प म ग रे ग म प ग म रे सा नि सा ध ग सा ध नि सा रे ग म रे सा नि सा रे नि सा ध सा ध नि सा रे ग ग म ग म प ग म रे सा सा रे ग म प ग म रे ग म ध ध सा ध नि सा रे रे ग म रे सा नि सा रे नि सा ध ध प ध प म प म ग रे ग म प सा रे नि सा ध सा ध नि सा रे ग ग ग म म प ग म रे ग म ध नि रे रे ग म ध प म प म ग रे ग म प म ग रे ग म रे सा नि सा ध ध सा। तो ये नट भैरव है पूरा। ध नि सा रे ग ग रे सा नि सा ध ध नि रे ध नि रे ग म
रे सा नि सा रे सा ग ग ग सा ग नि सा रे ग ग ग म प ग म रे ग म ग ध ध प ध प ध म प म ग रे ग म नि ध प ध प ध म प म ग रे ग म प ग म रे सा नि सा रे सा ध सा म ग रे सा रे ग म म ग रे सा रे ग म ध प म प म ग रे ग म नि ध प सा रे ग म म प ग म रे ग म ध प ग म ध ध नि सा रे नि सा ध नि ध प ध प म प म ग रे ग म रे सा। नट भैरव में नट अंग है और भैरव का पूरा राग है। तो भैरव राग में अगर नट अंग डाल दिया, नट अंग मतलब क्या है कि एक ठराविक फ्रेज होता है, देयर इज अ फ्रेज विच वी कॉल नट, जो सारे गम सा सा सारे गम, ये जो है ये नट है। भैरव कैसा है, सा रे रे सा नि सा ग म प ग म ध प ध प, तो ये भैरव है, नि सा ग म प म ग रे सा, ये भैरव है। लेकिन नट अंग उसमें अगर डाल दिया, नि सा रे ग ग म म प ग म ध ध नि सा ध नि ध प ध प म ग रे ग म प ग म रे सा रे नि सा ध सा। इसकी एक बहुत ही सुंदर बंदिश है, ये आड़ा चौताल में है। तो आड़ा चौताल कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ 14 मात्रास, 14 मात्रास, ओके। तो 14 मात्रास कैसे हम क्लैप करेंगे, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। किसको करने आएगा ये, वेरी सिंपल, 14 मात्रा काउंट करना है, सिर्फ 14 मात्रा। नाउ when we are counting 14, that means we are counting matras, we are not counting sur. अमिंदर जी, वी आर काउंटिंग मात्रास नॉट सुर, है ना, मतलब बीट्स हम काउंट कर रहे हैं। मात्रास मतलब बीट, दिन त्रिक धी ना तू ना कट्टा, सो दिन त्रिक धी ना तू ना कट्टा त्रिक धी ना दी दीना, दिन त्रिक धी ना तू ना कट्टा त्रिक धी ना दी दीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो टाली कैसी देनी है, 1 2 3 4, ठीक है, पहले दो टाली, मतलब 1 2 और 3 4 को टाली, फिर टाली खाली खेलते बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आड़ा चौताल is considered to be one of the most difficult ragas, sorry, most difficult ताल्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल में। डर जाते हैं लोग, तब्बल जी भी तबला बजाने के लिए डरते हैं आड़ा चौताल से, वो मैं सिखा रहा हूँ। सो अगर नहीं आया तो दैट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन ये कितना सिंपल है देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 13 14 को वेव होना चाहिए, एंड इसमें दो मात्राओं को एक टाली या खाली पड़ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, समझ में आ रहा है सबको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, सो ये आड़ा चौताल है।
Can someone do this for me so that I can understand whether you have understood or not? Just type I in the chat box. Just type I in the chat box. Anybody who wants to. Sarika ji? Okay. Please unmute yourself and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. हाँ, वो कंटिन्यूस होना चाहिए एंड यू शुड नॉट स्टॉप इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8. कितनी बार करना चाहिए? जब तक यू आर नॉट कन्विंस्ड कि हाँ अभी गलत होगा ही नहीं. हाँ, वो तबला प्लेयर है ना, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा 10-10 घंटा तबला बजाते हैं, वो क्योंकि वो कन्विंस नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहे होते. तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर कितना टाइम रियाज करना चाहिए? जब जितना रियाज करने को मिले उतना करो. सर सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? सुबह भी करो और शाम को भी करो. सर आपका क्लास कितनी बार अटेंड करना चाहिए? कितने भी बार अटेंड करो, जितना करोगे उतना अच्छा है. राइट? संगीत एक तपश्चर्या है, तो करते रहो और कहीं पे भी रुकना नहीं है. वो जो आपसे जो गलतियां होती है उसको सुधारना है, उसी का नाम रियाज है. राइट? दिन भर भी अगर सही से रियाज किया तो भी आपका गलत नहीं होगा, आपका गला खराब नहीं होगा. लेकिन 5 मिनट भी अगर गलत रियाज किया तो गला खराब हो जाएगा. ठीक है, करो सरिका जी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 13 5, 14 6, 13 14 को रुकना नहीं है. 13 14 को Okay. रुकना नहीं है. It is a cycle. It's a continuous cycle. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 4 के 13. बाद रुकना नहीं है. नहीं, I thought you told me to stop or something like that. I got. नहीं ठीक है. Okay, you have got it. Very good. It is quite difficult, but I'm making you absolutely simple to me. तो आप जाके कहीं पे भी शाइनिंग मार सकते हो. मैं आड़ा चौताल में गा रहा हूँ. एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं एक जगह पे बैठा और वो लोग मुझे बोले कि दिखाओ आपने क्या सीखा हुआ है. तो मैंने बोला आड़ा चौताल बजाओ फिर दिखाता हूँ. तो फिर वो 10 तब्बल जी थे वहां पे, उसमें से एक सिर्फ रेडी हो गया. फिर उसको मैंने 10 बार सिखाया कि धिन धिन त्रिक धी ना तू ना तट्टा त्रिक धी ना धी धी ना धिन त्रिक धी ना तू ना. तो फिर वो थोड़ा सा फिर वो बोलने लगे कि हाँ हर्षद सीखा हुआ है करके. तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ताल. तो इस ताल के ऊपर नट भैरव की बंदिश है. घर बायो सुगर बल माँ घर बा आयो सुगर बल माँ घर बा आयो सुगर बल माँ उलसायो मोरा जिगर माँ उलसायो मोरा जिगर माँ शुभ घड़ी शुभ दिन सकीरी घर बा आयो सुगर बल माँ घर बा आयो सुगर बल माँ उलसायो मोरा जिगर बा उलसायो मोरा जिगर बा शुभ घड़ी शुभ दिन सकीरी घर बा आयो सुगर बल माँ घर बा आयो सुगर बल माँ गावो बजावो सब मिल गावो बजावो सब मिल
चौक पुराओ सखीरी, चौक पुराओ सखीरी, आज घर काज रसदास, आज घर काज रसदास, करूंगी मैं साज सिंगर बा घर बा, आयुष घर बल माँ घर बा, आयुष घर बल माँ, उलसायो मोरा जिगर बा, उलसायो मोरा जिगर बा, शुभ घड़ी शुभ दिन सखीरी घर बा, आयुष घर बल माँ घर बा, आयुष घर बल माँ, उलसायो मोरा जिगर बा, उलसायो मोरा जिगर बा, शुभ घड़ी शुभ दिन सखीरी घर बा, आयुष घर बल माँ। समझ में आ रहा है? घर बा आयुष घर बल माँ, उलसायो मोरा जिगर बा, उलसायो मोरा जिगर बा, शुभ घड़ी शुभ दिन सखीरी घर बा, आयुष घर बल माँ घर बा, आयुष घर बल माँ, गावो बजावो सब मिले, गावो बजावो सब मिले, चौक पुराओ सखीरी, चौक पुराओ सखीरी, आज घर काज रसदास, आज घर काज रसदास, करूंगी मैं साज सिंगर बा घर बा, आयुष घर बल माँ घर बा, आयुष घर बल माँ, उलसायो मोरा जिगर बा, उलसायो मोरा जिगर बा, शुभ घड़ी शुभ दिन खकीरी घर बा, आयुष घर बल माँ घर बा, आयुष घर बल माँ, सुगर बल माँ, सुगर बल माँ। बहुत अच्छा बंदिश है। तो शब्बीर जी थैंक यू। शब्बीर जी थे ना, शब्बीर जी। हाँ। और बिलास खानी तोड़ी का जो बंदिश है वो मैंने 3rd एपिसोड में गाया हुआ है, देख लेना जाके, बहुत अच्छा बंदिश। हाँ, लास्ट में गाया हुआ है। यस, यू हैव क्वेश्चंस शीला जी, लेट मी अनम्यूट यू 1 मिनट। शीला जी है कितना? यस यस शीला जी। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हेलो, please unmute yourself. I've given you the permission to unmute. Yeah. हे तुम्ही म्यूट करून अनम्यूट झाला परत, अनम्यूट करून म्यूट झाला परत. हाँ सर, ओके सर. Yes. हाँ सर, एक बंदिश आहे ती नटभैरवर आधारित आहे का? मी म्हणते जरा जरा बघा. आले बेला सजन आयो, नहीं आले है, बेला नहीं ना? है, त्याला अच्छा, कोमल रे आहे. ओके नटभैरव में ओके. कोमल रे नहीं है. अच्छा, सारे ग म सारे ग शुद्ध है सब. समझ में आया? सारे ग
sa re ga ma pa re ga ma da pa ma ga re ga ma ni da pa re ga ma da sa da ni re sa ni sa da ni da ma ga re ga ma re sa da ni sa re re ni sa da sa da ni sa re ga sa re ga ma re ga ma da ni re sa ni sa re ga ma re sa ni da ga ma da pa ma ga re ga ma re sa da ni sa re ga ma re ga ma da ni sa re ni sa ni sa re sa ni sa da ni sa re sa re ga ma re sa ni sa ni da pa ma ga re sa da ni sa re ga ma re ga ma da ni sa re ga re sa ni sa ni da pa ma ga re ga ma re sa. इसमें कोई भी कोमल रे नहीं है, कोई भी कोमल ग नहीं है. घर बायो सुगर बल मा गम गरे शुद्ध रे शुद्ध रे शुद्ध ग शुद्ध म. Okay. Yeah, Karthik, you had question. Can you please unmute yourself and you can ask? Yes, sir. Actually, the tal which you have taught, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So when you just say it in numbers, it is like 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. But what is when you show in your hands, right? Like 1, 2, 3, 4, Nahin. 5, 6. 1, 2, 3, 4. In Yeah, each okay. clap, I'm counting 2. Yes, yes, sir. So what is the significance of that? So I can even sing with plainly like 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, right? But what is the significance of 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and what is this? Why are we using that one and how is that helping that in this particular rag? Yeah. So you're asking me कि जो ताल में जो तालियां बजाई जाती है, जो खंड है उसके, and all those things, मतलब where to clap, where to wave, all these things, where does it help? That is your question. Okay. So these are the industry standards. जैसे in industry there is a ISO standard. My company has this standard. So ISO standard matlab everybody knows that there will be safety measures taken, there will be lift, there will be adequate food, water supply, everything like that. So everybody knows that. Yes, in the same way in music, first of all, these are the standards कि अगर आपको आड़ा चौताल गाना है तो if you want to tell a tabalji, first of all, कि if you are saying घर बायो सुगर बल मा घर बायो सुगर बल मा, so he immediately understands कि ये कितने ताल बजा रहा है, कितने मात्रा बजा रहा है. Okay, so first of all everybody understands कि अगर आप 2 मात्रा ऐसे 14 मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जब आप करते हो तब अपने आप वो सामने वाले को समझ में आता है. नंबर 1. नंबर 2, these are very beautifully designed. What do you mean by that? कि it is easy to count. The ease is taken care of. Why? Because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4. So 1 2 3 4 वापस ताली पे आ रहा है, 14 को खाली आ रहा था, right? For ektal, which consists of 12 matras, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So the ease is taken into consideration. If you take 3 tal, dha din din da dha din din da dha tin tin ta ta din din da. So the ease is taken into consideration. Ki abhi some in every tal there are matras, and that means there are khands, there are divisions. For example, in 3 tal, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So I'm clapping on first matra 1 2 3 4, and I'm on first matra I'm clapping and 2 3 4.
का एक डिवीजन बन गया. आउट ऑफ 16 matras, 1 2 3 4 is one division, 5 6 7 8 is another division, 9 10 11 is a division where on 9 you give a wave. तो वेव क्यों दिया है? सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज 9th मात्रा गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, so you when I'm doing this, you understand the significance कि this is 9th मात्रा. So 9 10 11 12 13 14 15. अगर समझो आपने ये वेव नहीं किया, so 1 2, तो ये कंटिन्यूस लूप में मैं क्या कर रहा हूं? ताली बजा रहा हूं. तो अभी ये फर्स्ट मात्रा कौन सी और 9th मात्रा कौन सी और 8th मात्रा कौन सी समझ में आएगा ही नहीं. राइट? सो फॉर समवन टू अंडरस्टैंड देयर आर स्टैंडर्ड्स. राइट? तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4. तो ये ऐसा करते ही समझ में आता है कि ये खाली है. खाली है मतलब दिस इज अ लेटर पोर्शन ऑफ त्रिता after 8 matras. Right? This is how people find out sum. बहुत सारे लोग मुझे सम का पूछ रहे थे ना कि सम को पंच आता है and there is a point of time where there is a wave. तो फिर वो 4 डिविजन्स जो सेम लगते हैं वो अलग अलग कैसे लगेंगे? बिकॉज ऑफ धा और ता, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ दिस ताली. बिकॉज त्रिताल में धा धिन धिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन दा. तिन तिन ता धिन दिन दा, ये जो है इस ये ताता वगैरह है, धाधा नहीं है, धा के डिवीजन में नहीं है. दैट इज व्हाई इट साउंड्स डिफरेंट. राइट? तो वहां से सम पता चलता है कि धा तिन तिन ता दिन दिन धा के बाद जो धा आने वाला है वो सम है. समझ में आ गया सबको? सो वैसे ही इफ यू आर कंसिडरिंग आड़ा चौताल विच वी आर लर्निंग टुडे, दिन दिन धागे त्रिक तूना कट्टा धागे त्रिक दीना, दिन दिन धागे त्रिक तूना कट्टा धागे त्रिक दीना. सॉरी, मैं एक ताल गा रहा हूं. दिन त्रिक दीना तूना कट्टा धागे त्रिक दीना दी दीना. तो इसमें वो फर्स्ट खंड कौन सा? क्योंकि हम 2 क्लैप्स दे रहे हैं तो ये पहले 4 मात्रा है, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है. और वो जो काउंटिंग है, वो उसका प्लेसमेंट है, वो सब कुछ जो समझने वाला है उसको समझ में आता है. इट इज ईज, इट इज फॉर द ईज. और बहुत सारी जगह पे तो मतलब अभी रूपक है, समझो रूपक ताल में ती ती ना धी ना धी ना, इट इज 7 मात्रा ताल. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. तो जो 1 है 1 पे खाली है. तो ऐसा क्यों किया है पता नहीं, लेकिन 1 पे खाली है और 4 पे और 6 पे ताली है. समझ में आ रहा है? सो स्टार्ट ऑफ द मात्रा इटसेल्फ of that tal itself is a khali. So these are the standards that are given. These are universally accepted terms for the ease of tal, right? If you don't want to fall into this, doesn't matter. You can count in this way: 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7. ऐसा भी 14 काउंट कर सकते हैं, या फिर 2 मात्रा का भी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2. तो यहां तक ही काउंट करना है. That becomes very easy. Getting my point? Yeah. You just mentioned that I can find ragas on Google. May I know which are the most popular ragas and which is a reliable site to find them? See, ragas are like dishes in your kitchen. So if you ask what are the popular dishes, we can say that yes, dal is a very popular dish in India. Rice is a very popular dish in India. Paneer is a very popular dish. Paneer ki sabji, dal tadka. These are popular dishes
in Maharashtra, if you come to my house, वांग्याची भाजी, right? पुरणाची पोळी. These are the popular dishes. If you go to some Marwadi place, dal bati is a popular dish. So popularity of a rag depends upon house to house, right? So in the same way, popularity of ragas depend upon the घरानास, कि इस घराने में ये राग बहुत पॉपुलर है, उस घराने में वो राग बहुत पॉपुलर है, इस घराने में ये राग बहुत पॉपुलर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आगरे वालों का चंद्रकंस, चंद्रकंस नॉर्मली जो गाया जाता है दैट इज डिफरेंट, एंड आगरा घराने में जो चंद्रकंस गाया जाता है उसको हम आगरे वालों का चंद्रकंस बोलते हैं. और आगरे वालों का चंद्रकंस जो है वो डिफरेंट होता है. दैट इज अ डिफरेंट राग ऑल टुगेदर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आगरा घराने का चंद्रकंस. वैसे ही जो देशकार वगैरह जो राग है वो ग्वालियर घराने में ज्यादा गाए जाते हैं. बागेश्वरी जो है वो ग्वालियर घराना में ज्यादा गाया जाता है. एंड this is I'm talking about hardcore Indian classical. If you take Bollywood songs or album songs, भजन्स, नाट्य संगीत, ठुमरी, टप्पा, गजल वगैरह अगर आपने ले लिया तो उसमें यमन राग बहुत पॉपुलर है. यमन राग लोगों को यमन राग की ट्यून बहुत अच्छी लगती है. तो दैट इज वाइडली पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी इफ यू आर कॉलिंग अबाउट, राइट. तो कोई अगर WWE का सुपरस्टार जो WWE देखते हैं उसी को पता है, वो अगर हॉलीवुड में आ गया, फॉर एग्जाम्पल द रॉक, वो हॉलीवुड में आ गया तो उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गई. जब वो WWE में था तब वो सिर्फ WWE देखने वाले, मैं बचपन में बहुत देखता था वो फाइटिंग, तो वो WWE देखने वाले लोगों को ही वो रॉक पता था. लेकिन वो जब हॉलीवुड में आ गया तो ही बिकेम पॉपुलर. तो सब उसको, द ड्वेन जॉनसन को बहुत अच्छे से जानने लगे. तो राग का भी वैसा ही है. जब तक वो एक हमारे घर में घराने में वो अच्छा लग रहा है तब तक हम गा रहे हैं. किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने इसको सुना और उसके ऊपर अगर लाइट म्यूजिक बनाया, कोई बॉलीवुड का गाना बनाया, तो फिर वो बॉलीवुड में पॉपुलर हो जाता है और फिर वो सबको समझ में आता है कि ये इस राग का है. जैसे बिहाग है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते हैं, ये बिहाग का लिया हुआ है. वो शंकर महादेवन ने वो ब्रेथलेस गाना बनाया, वो यमन राग में बनाया, राइट. तो वो हमीर में वो क्या है, वो कौन सा है वो हमीर राग में वो लता मंगेशकर जी ने गाया है ना, वो कौन सा गाना है, वो हमीर राग, वो उसकी वजह से पॉपुलर हो गया. हमें किसी को पता है कि हमीर राग में मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में, तो ये मधुबन में राग, हाँ शीला जी बोल रहे, तो ये हमीर राग है, तो वो पॉपुलर हो गया. तो just because a rag is popular does not mean that it is one of the best rag. It is just popular, right? So कौन सा राग अच्छा है, that is your personal choice. That is your personal choice. Listen to the tune, you will like that tune. Each and every rag is beautiful. Just because Yaman is the most popular rag, that does not mean that Yaman is the best rag in the world. Or some rag is the least popular rag, that does not mean that it is the worst rag. Every rag is beautiful. Every human is beautiful. वैसे ही every rag is beautiful. देखने का नजरिया चाहिए. Getting my point? ज्योति कलश, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो का, ये दादरा में है. 1 2 3 4 5 6 करे, हमें पता चल रहा है एक किस वर्ड को देना है, 2 किस वर्ड पे आ रहा है और वर्ड से कैसे ताल पता चलेगा. ओके,
Now, when we are counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, or any avartan of a tal, we are not counting the words of that particular song. We are counting matras. We are counting beats. And there is a significant difference between words and beats. Getting my point? There is a significant difference between words and beats. For example, अगर ये वाली बंदिश अगर हम लेंगे, घर वा आयो सुगर बल मा, तो घर वा, अभी इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स है, घर वा, लेकिन घर वा आयो सुगर बल मा, घर वा आयो सुगर बल मा, घर वा आयो सुगर बल मा। तो इसमें बहुत सारे 14 मात्राज है, लेकिन वर्ड्स बहुत कम है। घर वा आयो सुगर बल मा, इतने ही वर्ड्स है, लेकिन मात्राज जो है वो घरवा तो पहले से चालू हुआ है, तो 15-20 मात्रा है, लेकिन 10 ही वर्ड्स। सो वर्ड्स एंड मात्राज आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, भोर भई जाए आ गो, भोर भई जाए आ गो, भोर भई जाए। तो जागो से भोर भई जागो, भोर भई जागो, सिर्फ 6 ही वर्ड्स है, मतलब वर्ड नहीं है, 6 ही अक्षर है। वर्ड्स तो भोर भई जागो 3 ही वर्ड्स है, लेकिन 6 अक्षर है, भोर भई जागो, राइट। तो लेकिन जो मात्रास है वो 16 है, समझ में आ रहा है? जो मात्रास है वो 16 है, तो उसमें क्या किया है, भोर भई जागो, इतने सारे मात्रा सिर्फ जागो करने के लिए मैंने काउंट किया है। भोर भई जागो, भोर भई जाए। सो जागो के लिए मैंने कितने मात्रास, मैंने 11 मात्रास मैंने जागो के लिए खर्च किए, सिर्फ जा और गो इसके लिए। जा को मैंने 7-8 मात्रा खर्च किए, समझ में आ रहा है? सो वर्ड्स एंड ये बीट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। यू शुड काउंट बीट्स एंड you should try to fill in that, वो आवर्तन। भोर भई जा आ गो, भोर भई जा आ गो, भोर भई जा गो, भोर भई जा गो, भोर। तो मैं काउंट करने के लिए आपको आ करके दिखा रहा हूं, तो आप भूल गए, वो आप काउंट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। प्रैक्टिस कर करके वो यू विल मास्टर इट। फॉर दैट यू हैव टू कम टू माय क्लास। यू आर नॉट कमिंग टू द क्लास, प्लीज कम टू द क्लास, देन वी विल प्रैक्टिस टुगेदर एंड वी विल लर्न। बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट जागो, okay? Yeah, I'll allow you to speak. Yes. Please unmute yourself. Okay, sir. Thank you for explaining me, sir. हाँ, हो गया, ये समझ में आ गया आपको इतना तो? हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि ताल को, अभी ताल पहले हमें लेना है, फिर उसमें गाने को फिट करना है अपने वर्ड्स को। ये मुझे अभी जो आपने बताया समझ में आ गया। अब हमें उल्टा करना, फॉर एग्जांपल कोई गाना प्ले कर रहा है, मुझे उसके वर्ड्स, मुझे उसकी बीट नहीं पता है, तो मुझे कोई गिटार पे जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई गाना बोल रहा है जैसे बहारो फूल बरसाओ, अब मुझे उसका कैसे पता चलेगा कि ये किस दादरा में है, कैरवा में है, वर्ड से। अभी आपने सबसे पहले तो ये दादरा, कैरवा, त्रिताल, एकताल, झपताल जो कोई भी है, इसकी वजन से पता चलता है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, तो वो जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 का वजन है, राइट?
समझो कोई भी अगर आप त्रिताल में गा रहे हो, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका, धा दिन दिन दा दिन दिन धा तिन तिन ता। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4-4 का वजन है, या फिर 2-2 का है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो समझ में ही आता है, राइट? तो 1 2 1 2 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है 1 2 3 4 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट? अगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 का वजन है। लग जा गले कि फिर ये 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 का वजन है, राइट? इससे समझ में आता है कि फिर वो तबला को सुनो, तबला वाला क्या बजा रहा है, धी धी ना ती ना, धी धी ना ती ना, तो वो दीदी ना तीती ना बजा रहा है, तो वो दादरा है क्या, ती ना धी ना धी ना, ती ना धी ना धी ना, इसमें वजन क्या है, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, तो ये 3 मात्रा और 1 2 1 2 मतलब 4 मात्रा, ऐसे 7 मात्रा का वजन है, या 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 और 4 ऐसा वो लाइट म्यूजिक में बोला जाता है। लेकिन सब कुछ यही है जो मैं बता रहा हूं कि जैसे आप फिंगर्स में काउंट, 1 टी ना धी ना, चाहे आप ऐसे काउंट करो या 1 2 3 1 2 3। क्लासिकल म्यूजिक में ताल का काम जरा ज्यादा होता है, तभी तो सर ज्वाइन इसलिए हम किया उसको, था। हाँ, इसलिए ताल का और सुर का बहुत काम ज्यादा होता है। जी लाइट म्यूजिक में ना शब्दों का काम ज्यादा होता जी जी है ना, सर लग वो जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, ऐसा वो गाने से वो सामने वाला बोलना चाहिए कि हाँ अभी गले लगना ही पड़ेगा, अभी वो शायद फिर कभी वापस वो मिले कि ना मिले, वो शब्दों का काम ज्यादा होता है। जी जी सर वो हाँ क्लास नहीं कर पा रहा, मैं ऑफिस में ही होता हूँ, जब कि आपकी क्लास लगा ना तो आई वाज इन ऑफिस ओनली, तो आई ठीक है, आईटी इंजीनियर, तो मैं जब मैं घर में होऊंगा, जब भी आपका क्लास होएगा तो आई विल बी देयर। श्योर श्योर, जी जी मैं ऑफिस में ही था, या आई वाज नोइंग कि क्लास चल रहा है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस या विद सर ट्राइंग एस्पेक्ट टू। द हाँ, तो धीरे इसका धीरे, रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा क्योंकि बीच में मेरी बेटी आ गई थी, तो मैं उससे फिर समझ कैच कर लूंगा। श्योर श्योर, हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। या सर लाइट म्यूजिक सीखना चाहे तो देखो, मेरी एक मतलब मेरे वाइफ की बहन है, वो लाइट म्यूजिक सीखना चाह रही थी, तो वो है ना एक लाइट म्यूजिक के क्लास में गई, विच इज अ वेरी रिनाउंड क्लास फॉर लाइट म्यूजिक, और उसको है ना इंडियन आइडल वगैरह जाना था। तो मैंने उसको लाख बार बोला कि यार इंडियन आइडल वगैरह कुछ नहीं है, देखा हुआ है सब, इतना सा सुर लगाया तो वो जजेस कुर्सी टेबल पे खड़े होके नाचना चालू करते हैं, कभी गिर जाएंगे। ऐसा कभी होता है कि कभी लता मंगेशकर का गाना सुन के हमने टेबल पे खड़े होके वो नाचे नहीं, और एक छोटी सी बच्ची का टेबल पे खड़े होके वो गाना सुन के नाच रहे हैं, तो सब टीआरपी का दिखावा है। तो ठीक है, तो लेकिन उसको वो शी इज यंग इन कॉलेज, तो वो एक लाइट म्यूजिक के क्लास में गई, और 1.5 साल से उसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही सिखा रहे हैं वो, बिकॉज ये बेसिक चीज लोगों को समझ में नहीं आती है कि चाहे कोई भी लाइट म्यूजिक अगर आपको गाना है, तो द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज मस्ट, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज मस्ट। तो वो मुझे वही बोल रहे हैं, मुझे तो राग ही सिखा रहा है, और एक ही राग सिखा रहा है 8-9 महीने से, ऐसे नहीं कि बहुत सारे राग सिखा रहे हैं,
वो सुर कैसे लगाना, वो सुरों के लगाव कैसे लगते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भूप राग लेते हो तो सा रे ग रे प ग, तो ये प ग की जो मिंड है, प ग, तो प ग की जो मिंड है ये आपको क्लासिकल म्यूजिक में ही समझ में आ जाएगी। ग प ध ध सा ध प ग रे ग प ग ग रे सा रे ध ध। तो इसको गोल करने का जो कमाल है वो क्लासिकल म्यूजिक में ही सुरों का लगाव सीखने को मिलता है। और इसलिए अगर आपको लाइट म्यूजिक सीखना है तो आपको क्लासिकल म्यूजिक ही सिखाएंगे। फिर उसके बाद फिर एक गाना लेंगे और फिर वो सिखाते बैठेंगे उसके अंदर बाहर का। लेकिन अगर आपका क्लासिकल अगर पक्का है तो आप बड़ी आसानी से बाकी सारे लाइट म्यूजिक सब गा सकते हो। और फर्क सिर्फ इतना है कि क्लासिकल म्यूजिक में ना खड़ा आवाज लगाया जाता है। सा रे ग प ध प ग रे सा, तो ये वाला आवाज, ऐसा वाला जो आवाज है, जो जैसा मैं लगाता हूँ वैसा क्लासिकल म्यूजिक में लगाया जाता है। लाइट म्यूजिक में आवाज को थोड़ा सा पतला करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पतला करना पड़ता है। इसी तान को थोड़ी सी पतली गानी पड़ती है, थोड़ा सा मुर्खी वर्की जब थोड़ा सा डालना पड़ता है। लेकिन वो करने के लिए आपको पहले ये आना चाहिए, वो बात की बात है। तो इसलिए सबसे पहले क्लासिकल सीखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद दैट इज योर चॉइस कि अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक सब अच्छा लग रहा है तो आप क्लासिकल प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो फिर लाइट म्यूजिक अच्छा लगता है तो लाइट म्यूजिक में आवाज पतली करके गा सकते हो। अभी परसों मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाला हुआ था लाइट म्यूजिक का, उसको सुना और गा लिया, अच्छा हुआ, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, राइट। इज द सॉन्ग अलबेला सज्जन बेस्ड ऑन एनी राग? यस, वो आहिर भैरव में ना, आहिर भैरव का फेमस बंदिश है, वो पिक्चर में यूज हुआ है इसलिए आप सबको पता है, लेकिन वो ऑलरेडी एक फेमस बंदिश है, फेमस बंदिश। सर, हाउ टू फाइंड वंस रेंज? वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ टू फाइंड समवंस रेंज? रेंज मतलब क्या है कि अपना एक आवाज होता है, अपना आवाज नीचे जाता है और अपना आवाज ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं उसका जो हम एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक ऊपर जा सकते हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी तक नीचे आ सकते हैं। और ये कैपेसिटी शुरू में कम होती, ये कैपेसिटी शुरू में बहुत कम होती, इसको बढ़ाया जा सकता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंक्रीज योर रेंज, देन यू नीड टू फाइंड योर विच रेंज इज गुड इनफ। लोग क्या करते हैं, और जैसे मैंने किया था, मैं जब बचपन में गाता था तब मैं ये सोचता था कि मेरी आवाज मतलब कैलाश खेर जैसा या वो नुसरत फतेह अली खान साहब जैसा ऊपर का ही है, नीचे हम ज्यादा आते नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं ऊपर बहुत गाने की कोशिश करता था, नीचे का कभी प्रैक्टिस नहीं करता था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि मेरे खरज का रियाज ही कभी नहीं। तो खरज का रियाज, अगर आप योगा नहीं करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, वैसे ही अगर आप खरज का रियाज नहीं करोगे तो आपका वॉइस का जो फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज है वो नहीं बढ़ता है। तो for 22 years of my life when I never studied or learned music, I came to a conclusion कि मेरी आवाज बहुत ऊपर है और मेरी जो रेंज है वो बहुत ऊपर है, राइट। लेकिन जब मैंने क्लास लगाया तब मुझे पता चला कि हमको नीचे गाना पड़े। तो मैंने मैडम को बोला कि नहीं, मैं नीचे नहीं गाता हूँ,
तो मैडम ने बोला चुपचाप मैं जो बोलती हूँ वो करो। तो मुझे उन्होंने वो नीचे खींचा, तो जैसे जैसे मेरा आवाज नीचे गया और भी ऊपर जाने लगा। तो जितना आप नीचे जाओगे उतना आप ऊपर जाओगे। ये संगीत का रहस्य है, सीक्रेट। सेकेंडली, एक बार आपका आवाज थोड़ा सा रेंज थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, तो आपको पता होता है कि एट व्हाट रेंज आर यू कंफर्टेबल एट। यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज एट विच यू आर कंफर्टेबल। मतलब क्या है कि आप मुझे समझो ये शर्ट लेना है वैन हुसैन का, तो मैं वैन हुसैन के शोरूम में जाऊंगा, उसको कपड़े पहन के देखूंगा कि ये जो स्केल, ये जो शर्ट है ये मुझे फिट होता है कि नहीं। डजेंट मैटर 40 है, 42 है, 44 है या 46 है या 38 है जो साइज, लेकिन मैं ये पहन के देखूंगा और उठूंगा बैठूंगा इधर उधर मुड़ूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल at this particular shirt or t-shirt. In the same way, you have to find out at which scale you are comfortable at. Just try and sing at different scales. What I suggest you that किसी भी जो कोई भी जो गाना गा रहे हो आप, उसकी जो हाईएस्ट पिच है, जो हाईएस्ट नोट है, वो कहाँ पे है देखो, एंड वहां तक आपका आवाज जाता है क्या देखो। और कोई भी जो गाना है उसकी जो लोवेस्ट नोट है कहीं पे तो लगेगी, वहां पे आपका आवाज जाता है क्या देखो। और दोनों भी अगर नोट्स कंफर्टेबली लगते हैं तो दैट स्केल इज योर कंफर्टेबल स्केल। दिस इज माय आंसर टू हाउ टू फाइंड आउट योर स्केल। सर how to touch a note like going from re to p, touching g, मतलब रे टू प, कौन सा रे कौन सा प, ऊपर का रे नीचे का रे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। when you're practicing ragas and bandishes and when you're singing, एक होता है कि नीचे के सुरों से ऊपर जा रहे हो, उसको आप खींच बोलते हैं, मतलब सुरों को खींचना। हम खींचते हैं कि नहीं, अगर रस्सी खींचते हैं वैसे हम सुरों को खींचते हैं। सा 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 सा, तो इसे सा, तो हम ऊपर खींच रहे हैं, तो उसको खींच बोलते हैं। सा तो ये हम क्या किया, हमने ये मींड किया, मतलब घसर गुंडी किया आपने, घसरत अपन आलो इकडे, तो उसको हम मींड बोलते हैं। ये मींड और खींच जो होते हैं, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इसको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल म्यूजिक है। तो ये जब आप गाओ, थोड़ा सा श्रृंगार करोगे मींड का और खींच का, तो थोड़ा सा उस राग को मेकअप आ जाता है, वो राग और सुंदर लगने लगता है। तो जैसे हम मेकअप करते हैं, हम मतलब मेरी वाइफ मेकअप करती है, मैं नहीं करता, ये दिस इज माय नेचुरल फेस, वैसे वो रागों को श्रृंगार करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ खींच पकड़, विद द बाय इंप्रूविंग द रिदम, बाय चेंजिंग द रिदम कॉन्स्टेंटली। ये मैं आपको अगले क्लासेस में जब भी हम मिलेंगे ये समझा देता हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट हाउ टू ब्यूटिफाई द राग। Yeah, range for comfortable singing. That is what I have explained you, Karthik. See, I hope you have understood. Sir, my scale is G sharp, but मैं ध नी सा तक, ध नी सा ठीक से लगा ही नहीं पाती। Suman ji, it's a matter of practice. You will surely be able to do that. It's a matter of practice. Listen to Tanpura, listen and try to sing it, and there should be someone to correct you. There should be someone to show you that you have to go down. You have to correct this sur and all. So if you have a good teacher in your life, तो ये ध नी सा कुछ भी नहीं, अपने आप लग जाएगा। It's a matter of listening to that carefully. वो सुरों के माहौल में आप रहो, संगीत के माहौल में आप रहो। मतलब जब आपके घर में गेस्ट आते हैं
तो हम कितने अच्छे से आप सर्व करते हो, उनको चाय देते हो, अलग डिश में बिस्किट्स देते हो, कुछ नाश्ता बनाते हो, पानी देते हो, तो इसके संस्कार जो है ये आपके बच्चों को लग जाते हैं अपने आप। तो जब जिस दिन आप नहीं रहते हो तब बच्चे बुलाते हैं, कोई अगर अंदर बुलाते हैं, पानी देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और फिर वो गेस्ट जो है वो बाद में आके हमको बोलते हैं कि आपका बच्चा कितना संस्कारी है, हमको पानी लाके दिया, हमको चाय पानी पूछा, सब कुछ किया। और फिर हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को कभी भी ऐसा सिखाया नहीं है, फिर भी बच्चे ने चाय पानी कैसा मांगा। तो बच्चे जो है ये अपने घर का जो माहौल है, जो संस्कार है, उससे सीखते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम झगड़ा कर रहे हैं बच्चों के सामने तो बच्चे भी झगड़ा करना सीख जाते हैं। अगर हम अच्छे से रहना सीखे और सिखाए तो अच्छे से रहना सीख जाते हैं। सो जो आपके घर का वातावरण है वैसे बच्चे बन जाते हैं। वैसे ही अगर आप अच्छे माहौल में संगीत सीखते हो, संगीतमय माहौल में ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करते हो, म्यूजिक क्लासेस ज्यादा से ज्यादा आते हो, तब आपका जो धनी सा है या फिर कोई भी मिंड है, पकड़ है, खींच है, जो भी आप बोल रहे हो, ये सब चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। राइट? हम बच्चों को ये होटल मैनेजमेंट की जैसा पानी कैसे देना है, ट्रे में कैसे रखना है, ये सब बताते तो नहीं है ना, फिर भी बच्चे, छोटे बच्चे भी अच्छे से वो कर लेते हैं इन योर एब्सेंस। क्यों करते हैं? हमने वो होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं दिया है उनको, लेकिन हमने खुद उनके सामने गेस्ट को वैसे ट्रीट किया है, और इसकी वजह से आपके बच्चे अच्छे बन गए हैं। गाने का संस्कार भी अपने घर के संस्कार के जैसा है। गाने के संस्कार जब आपके कानों में पड़ जाते हैं, अच्छा गाना पड़ता है, अच्छे गुरु के सानिध्य में आप रहते हो, तब ये सारी बातें अच्छे से आ जाती। इट इज अप टू यू हाउ डेडिकेटेड यू आर while you are learning this. You have to do some sacrifices. You have to pick up some time to learn music. You have to keep listening to music. And बाकी सब कुछ ही महीनों में अच्छे से हो जाएगा. You'll be amazed. Right? Yeah. Okay. आप में से कोई कोल्हापुर से है क्या? मेरा एक स्टूडेंट कोल्हापुर का है. So I want to know whether he is there. Acha, Rohan, okay. Hi, Rohan. I hope you have got the complete clarity. Okay, where do you live in Kolhapur? I'm basically from Kolhapur. Right now I'm in Mumbai. Nagara Park. Okay. ठीक है. Okay. So let us end this session here. It was very good Q&A session. Very nice. I have explained you Ada Chautal also. I have explained you the Natta Bhairav. Okay. Make sure that you keep learning. Watch all the episodes in my course. And if you want to join my regular classes, you are more than welcome to join my regular classes. Most of you, I can see that they are in this course, but still they have joined my regular classes. They have come in the morning also at 9 o'clock class, and they have come in the evening also. And you will find all the details at the end of episode number 4. It is very important for you to learn the way I'm telling you, and आपको कोई नहीं रोक सकता संगीत को अच्छे से explore करके. Please complete the course. And about my regular classes, I conduct classes 9 times a week. Okay, 9 times a week. Those of you who have not completed the course, I have explained you at the end. I take classes 9 times a week. That means 36 times, around 36 times in a month, and around hundreds of classes in 3 months. So that kind of efforts I take while I'm teaching music in my regular classes. So I want you to jump to the regular classes, even if you have not completed the course. And if you want to complete it later, and if you want to jump from tomorrow, you can come to my regular classes and you can join my regular classes. Now, what are the fees of my regular classes? The fees are 4,999 rupees for 3 months. That is around 1,500, 1,600, 1,700 rupees per month.
It's 4,999 rupees for 3 months. Now, if you're someone who comes from a rural background and there is some issues with the funds, you can pay monthly 2,000 rupees also. So if you want a monthly payment, you can pay 2,000 rupees. If you want to pay for 3 months, go ahead, 4,999 rupees for 9 times a week, 36 times of classes. Each class is of 1 hour. So this deal, you will never get that anywhere in any other music class. Also, let me tell you that my classes are soon going to turn out to be full, and there are so many people who are enrolling every day, and they are very smart people. They don't want to miss the chance of enrolling to my class. So my classes are soon going to be full, and once they are full for next 3 months, I could not be taking I will not be able to take the classes because I have a limited time. I take 9 times a week. So, and I have to take care of each and every sur, each and every tal of each and every person. And I have to give chances like 4 to 5 times every week to all the people. So I cannot take a lot of students. So I request you, those of you who wants to join, should join at the earliest. Otherwise, there is a chance that you will miss a chance. Also, you will get the lifetime access to Facebook group, WhatsApp group of Swargyan Parivar. It's a lifetime access. You will get all the recordings of my classes. So, जो भी मेरे classes के 9 times की जो recordings है, all you will get in the Facebook group, and you will get all the support of mine in WhatsApp group. Yeah, how many students per batch? There are like 10-15 students every time I go live in a class. So it is for me to make sure that everybody, I'm teaching everyone properly. The most important essence of learning music in my class is listening and observing. So it literally does not matter how many students are there along with you. You, jitne bhi students aate hai, you learn not only from your guru, but you also learn from your guru bandhus and bhaginis. So when they are making mistakes, you learn from it. So it is ideally very nice if more people come to the class and more people are listening to each other properly. So, and making a lot of mistakes and I'm correcting it, that makes sure that you are learning fast, right? This is virtual class. This is the class that we are running right now. It's live on Zoom, 9 times a week. Ideally, physical class you cannot come 9 times a week, और 9 times a week अगर आप physical classes में आते हो तो आपका पेट्रोल का खर्चा मेरे फीस से ज्यादा हो जाएगा. So these are the formalities, but most importantly, you have got a wonderful chance to learn music. I am very, very fortunate that I have found a very good guru in my life, and it was मैं कोल्हापुर में रहता था, मुंबई में मैं जॉब के लिए आया, and fortunately मैं मुलुंड में आ गया जॉब करने के लिए, and in Mulund I was finding a teacher and I got my Guruji Pandit Arun Kasharkar. So I was very fortunate. मैं गुरुजी को ढूंढते हुए नहीं आया. In the same way, you got my ad and you are very fortunate that you took the course and you're learning under me. It's your responsibility that you carry it forward. Okay. Yeah, how can we enroll? 1 minute. I'll send you the Google Pay number of mine. This is my Google Pay, Phone Pay, and Paytm number. 9767502002. So you can Google Pay or Phone Pay or Paytm on this number. So the price is 4,999 rupees if you want to take 3 months, and 2,000 rupees is not something that I give normally. This is the price for my webinar only. Okay, webinar over, this kind of offer over, you can enroll for 4,999 rupees for 3 months class later also, or 2,000 rupees for 1 month.
What are the timings? Timings are 3:30 p.m. and 7:30 p.m. and Sunday 9 a.m. 3:30 p.m., 7:30 p.m. in the weekdays and 9 a.m. in the weekends. These are the timings. So I'll send you the timing chart later. लेकिन मोटा मोटी ये timing है 3:30 p.m. in the evening, 7:30 p.m. in the evening at night. And the main intention of mine to give you the classes 9 times a week is that you come to maximum number of classes. I don't mean that you come to all the classes. I know it's literally not possible to come to all the classes, but if you come to most of the classes, I'm the last person on this planet to stop you, because I want you genuinely to learn music. तो जितना आप मेरे क्लास में आओगे उतना अच्छा होगा. So I'm not that kind of a person कि एक बार एक क्लास में आओगे तो 2000, 2 क्लास में आओगे तो 3000, 4 क्लास में आओगे तो 4000. I don't want to do that. I want you to come to maximum number of classes, irrespective of whoever you are, right? And I want only serious students to join my course, because I'm going to spend hundreds of hours with that person, and that is why I'm putting up the price. Also, this is my bread and butter. I am doing a fabulous job, and I'm taking a very nominal fees from my students, just that because it is very, very important for you and for the duration of one session is 1 hour. Abhijit. Anjan, today was the first day of this course. How long are your classes? Time per class? The recorded course, you have lifetime access. Please watch one video every day, Anjan. And after you watch all the recorded course, please join my regular class, or you can join my regular class today and watch the recorded course later. Regular course time per class is 1 hour per class. And in this way, we have 9 times a week. One hour. Did you get me? 1 hour per class. Sita ji, you want to tell something? Hariom. Yes, Sita ji. Hariom. I just felt inspired to speak. Nobody has asked me to talk. I'm talking from my own experience. Like you people, I saw sir's ad in the Facebook. Then he had a webinar in April. I listened to the webinar on the 18th of April. I remember I joined. And that time, Rag Darbari Kannada was going on. And that Rag goes on every day. You cannot see any music teacher so dedicated, so passionate. 9 classes in, there are sometimes 2 classes per day. And I'll tell you from my experience, I said, where am I going to practice? But it's so beautiful. Sir is God sent. See, with him, even if I don't practice all day with him, I listen. And when you listen, it just goes into your brain and somehow you start singing. I'll tell you one experience, Darbari Kannada, somehow, when sir made us sing, I sang. Yaman, I did not. So, sir, I was listening. Then sir said, listen to everyone, that you keep listening and one fine day it will come. So today morning when I got up, apne aap ko sab aage chalana, I'm waiting to sing sir tomorrow. So it is so true, he speaks from his heart. He speaks from his heart and he means every word of it. 36 class a month is not a joke. And this is my 7th month and sir has been so true. I really have no words to express. Today I couldn't hold myself, so I'm raising my hand. I'm sending him a personal message. Sir, let me talk. Thank you, sir, for giving me a chance. And I wish you all the best. And you are just great. I hope we can all live to expectations. But I really feel very blessed about everything. Thank you so much. My pranams and Hariom to you. Thank you so much. You are also wonderful, Sita ji. Okay. Yeah, I hope that I have cleared everyone's doubt. Any other doubts before I end this? Sir, when is your next Kolhapur visit? Yes, Rohan. I live in माझा आजोळ आहे कोल्हापूरला, मंगळवार पेठेत, पोष्टी गल्लीत, नागाळा पार्क मध्ये, ताराबाई पार्क मध्ये माझी मावशी आहे. नागाळा पार्कात
माझी एक बहीण आहे, ती राहते नागळा पार्क मध्ये. आणि मी स्वतः इचलकरंजीत राहतो. माय मेन रेग्युलर माझं जे घर आहे ते इचलकरंजीत आहे, पण माझं आजोळ सगळं कोल्हापूरला आहे. विल डेफिनेटली मीट. Yes, any questions? Anything else before we end it? And there are so many people in Kolhapur, like Kane madam म्हणून आहेत. So she also knows me very well. So, and there are lot of masters even in the city of Kolhapur. They're like Nivrutti Bua Sarnaik. Pandit Nivrutti Bua Sarnaik is from Kolhapur, and वो हमारे गली के 2 गली पीछे रहते थे और मुझे पता ही नहीं था. He was one of the finest singers in the field of Hindustani classical music. Pandit Nivrutti Bua Sarnaik. फिर अल्लादिया खान साहब वगैरह, बाल गंधर्व वगैरह, वो वहाँ पे कोल्हापुर में बहुत सारे उनके शोज वो सब रहते थे. Yes, Anjan, I'll send you today's class record. I'll send you. Okay. So those of you who wants to enroll in my regular classes, please make sure that you enroll. And do message me that you have made the payment, and I'll give you the access to all the classes, and your classes will your batch will start tomorrow. Okay. So wish you all the very best. And I'm expecting that most of you, I cannot take all the people, but most of you should join my regular classes and make your life wonderful with this mesmerizing Indian classical music. This is Harshad Kamble signing off. Until we meet again, if you have any doubts further, you can message me. And as I have always answered you, मैंने किसी का भी आज तक कोई भी question unanswered I have not left. You know that even at the starting point. So I'll try to answer each and every question. So make sure that you join my regular classes. Very, very affordable. You will find no other class like that at anywhere. Right? Thank you so much. Bye bye. Take care.